जब आप रोजा रखते हैं तो ये ना सोचें कि आप खुदा के प्लान को चेंज करने के लिए रोजा रख रहे हैं. God is an unchangeable God. Because of fasting, you never change God's plan. Amen? Amen. But you reach the God's plan. If you do fasting, you reach the God's plan. But you cannot change the God's plan. Amen? Amen. आप खुदा के मंसूबों को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, उस तक पहुंच सकते हैं, लेकिन उसको बदल नहीं सकते. Amen? Amen. और हमने क्या सीखा था? रोजा जो है वो खुशीगी का है और खुदा खुशीगी का अजर देता है. Yes, when you do in silence. और you don't have to look sad if you are fasting. Yes, अपना चेहरा नहीं खराब करना आपने कि today I am fasting. If there's something in front of you, you should just walk away instead of telling others you're fasting. Yes, very nice. If you see something, food or party in front of you, just silently leave that place. In spite of telling everybody today is my fasting, remove this food from me. हाँ? ये खाना वाना मेरे आगे से हटा दो, मेरा रोजा है. आपको खुद ही पोशीदगी से उस जगह को छोड़ देना चाहिए. Amen? Amen. Yes. We learned 3 special points. Our body can sustain with 40 days. Yes, our body can sustain only the 40 days. Over 40 days you need to. Over 40 days, your body is starving and your muscle is going. Body is consuming your muscles. आपका जिस्म आपके जिस्म के अज़ाओं को खाना शुरू कर देगा और आप जो है दिन ब दिन कमजोर होते जाएंगे. अगर आप 40 से ऊपर रखेंगे. That's why nobody did more than 40 fasted. Go check the Moses. 40 days and 40 nights. Check Elijah. Not more than 40. Check Jesus. Not more than 40. But sometimes we say we can go 45 to 50 fast. Until Jesus is not listening. है ना? ऐसे भी हम करते हैं. नहीं, जब तक खुदा नहीं सुनेगा हम रोजे रखते रहेंगे. हाँ? We learned about baptism. Water baptism, okay. So you should go about doing a normal work. It does not mean you make others work. ये नहीं कि हमने जो है हमारा रोजा है तो हम काम कम करें और दूसरों से काम ज्यादा करवाएं. We don't have to do it. In the Jewish culture, when they do fasting, they put the ashes on their shoulder. Okay, वो अपने कंधों पे राख डालते थे. वो अपने कपड़ों को फाड़ते थे, चाक करते थे, अपने आप को हलीम बनाते थे ताकि वो खुदा की नजर में मकबूल ठहरे. So the eyes of the Lord come upon them when they pray. God answers their prayer. That is the powerful fasting. और रोजा हमें पाक साफ करता है. रोजा हमें पाक साफ करता है, प्यूरिफाई करता है. the fasting is purified us. वो हमें पाक और साफ करता है, हमारे अंदर की गंदगी को दूर करता है. और It strengthens your spirit. it strengthens your spirit. Very nice. Fasting is strengthen your spirit. You spiritually strong. Gets you closer to God. और आप खुदा के करीब भी होते हैं. You are closer to God. When Jesus did 40 fasting, the devil tempted him by making the stone into bread. Yes, that is very important. When you do fasting, the devil is immediately come next to you and he start tempting. Today you are not watching TV. Why? Today no Facebook. Why? No YouTube. Why? Now fasting is closed, open, finished. Now your time, enjoy. Then you say, 30-minute relaxation time. Then again for the next day preparation. And every time when you do fasting, devil is ready to attack. Tested your faith. जब जीसस ने भी 40 दिन का रोजा रखा तो उसके बाद एकदम शैतान उसके पास आया, उसे बहकाने लगा. Jesus is full of the Holy Spirit. And the Holy Spirit is permitted Jesus to go to the wilderness. यीशु को शैतान ने नहीं आजमाया था, खुदा पाक रूह से लेके गया
था कि शैतान से आजमाया जाए. That's why I tell you, read gospel carefully. When the devil tempted Jesus to convert the stones to bread, Jesus said that you don't survive only on bread but on the word of God. Amen. जब शैतान ने जब पहली उसके ऊपर आजमाइश आई तो कहा कि अगर तू खुदा का बेटा तो इन पत्थरों से कह के रोटी बन जाए, और खुदावन ने कहा कि लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी से ही जीता ना रहेगा बल्कि हर उस अल्फाज से जो खुदावन के मुंह से निकलता है. Yes. So whenever we feel also hungry, we should remember this. When we feel hungry? We should also remember that what Jesus Yes. said. How we get the strength, we feel it. How the Lord is have a hunger. Why He faced all this hunger and thirst? Because of you and me. मेरे और आपके लिए उसने ये सब कुछ सहा. Then what we learn it? When we do the fasting, we change our life. Yes, we change our life. Okay. Fasting is transfer natural to spiritual. आपकी नॉर्मल जिंदगी से रूहानी जिंदगी में आपको ले जाता है. Fasting is a dedication to a period of a time to devote yourself to spiritual purity of prayer without food. Okay? Fasting is a dedication. आप डेडिकेट करते हैं कि आज मैं अपना आप खुदा को दे रहा हूं. How many people are fasting for God or for our own purpose? Not yet. Yeah, I want to know how many fasting you did. Once. One? Long time now. No, I told you the last week. This No, week. I want to start next month. Next month after the fasting comes. So अपने खाने के बगैर हमने अपनी जिंदगी का अव्वल दर्जा किसको देना है? अपनी दुआ को. We have to give priority to the prayer. हाँ? बीमार हो जाए तो दुआ नहीं छूटनी चाहिए. आपकी बाइबल रीडिंग नहीं छूटनी चाहिए. I thank God. The God is going to bless Jeremiah. He is fully problem in the mouth, sores and all thing, and throat infection. But I told him you have to worship by hook or by crook. I don't want any excuse. And I thank God, the great Holy Spirit strengthened him and he did it. Amen. Amen. Glory to God. His chest is full of this blisters and all the gums is scratches and the mouth is full of sores and white patches. But all glory to God. Hallelujah. Amen. Amen. We don't have to give excuse. हमें excuse नहीं देनी चाहिए कि आज मैं बीमार हूँ, आज मैं नहीं आ सकता. Please, don't give excuse. Don't give excuse. God doesn't like excuse. God is hate your excuses. He died for you. He never give excuse. No, leave this person and remaining I will die for everyone. Huh? He said no. He gives the open invitation. What is that invitation? Come on. Come on. God, Jesus gave the open invitation. Oh, come, yokes and heavy laden, come to me. Come to me, all you who are very important. I'll give you the wonders. I will give you the rest. Oh, जो बोझ से थके वाले लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? आराम दूंगा. He gives you the open invitation. He never gives the excuse. So there is no fast like that I am not eat or not drink next 40 days. But I drink only Coca-Cola, no water. Only juices, no water. Huh? Fasting is no food, no water. There is a different type of fasting. I will explain you. There is a liquid fast, there is a full fast. Different types of fasting, we're going to learn it. Amen? Amen.
Fasting is no food, no water. Esther did it. No food, no water. Or no food, only water. Can you just close my alarm? I have lot of alarms. Full alarm. Amen? Amen. That is the which Esther fast because your body needs liquid. बॉडी को लिक्विड चाहिए होता है ना. Moses, Jesus not eat food. The central because your belly is our greatest controller. आपका जिस्म जो है, आपका स्टमक जो है, वो आपके पूरे बदन को कंट्रोल करता है. Amen? Amen. If you are never settle the body, you fight the natural. और ये अगर आपका बदन जो है, आपका पेट जो है, यही आपके पूरे बदन को जो है तकवीयत देता है. और जब इसके अंदर कुछ नहीं होगा तो क्या होगा फिर आपका नेचुरली क्या हाल होगा? What is going to happen? Huh? Weak. Weak. So the requirement of fasting. Fasting is not just missing a meal. रोजा ये नहीं है कि हमने 2 वक्त का खाना मिस कर दिया है. रोजा ये नहीं है कि हमने एक टाइम का खाना मिस कर दिया है. That is not fast. That is simply you gonna say eat later. अभी भूख नहीं है बाद में खा लूंगा, है ना? That is like a fasting. If you're skipping the meal, you're saying yourself, food is ready but I will eat later. You're just passing the time. ऐसा ही है ना? Saturday we getting late, morning meal skip, है ना? So there is no fasting like that. Missing the meal is not a fasting. अपने खाने को रोकना जो है वो रोजा नहीं है. Amen? So रोजा जो है वो हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है. Are you too busy and say it's fast? Your mind is not with God, but you missing a meal. जब आप कहते हैं ना रोजा है, तो आप अपने दिमाग के अंदर बस रोजा लेके बैठेंगे, मैंने भूखा हूँ आज. आप ये कह रहे हैं कि आज मैं भूखा हूँ. I'm hungry, I miss my meal. When you say I'm fasting, मेरा रोजा है, you just skip the meal. Your fasting have no relationship with God. आपके रोजे का कोई ताल्लुक खुदा के साथ नहीं है. आप सिर्फ भूखा रह रहे हो. And that fasting has no reward. Fasting is not a dieting. है ना? Dieting ऐसे करते हैं ना? How you do diet? Diet plan कैसे करते हैं? Come on. डाइट बैलेंस करना. You pick and choose what you have to. How many times? Eating less. Yeah. है ना? Skipping a meal. Skipping a meal, eating less, using more liquid. That is also fasting. This is also fasting ना? अगर सुबह आपने 1 गिलास दूध पिया है, बाद में आपने पूरा दिन खाना नहीं खाया, शाम को खाना खाया, 2 times meal you skip. Because you're doing dieting and you're using the liquid. That is not a fasting. बहुत से लोग ऐसे भी फास्टिंग करते हैं. That is diet plan. When you fast, you have to pray. That is most important. जब आप रोजा रखें तो आपको जरूर है दुआ करना. Where's your mama? कहाँ पे चली गई आज? Very difficult बात है. Live long. जीते रहे हमेशा. खुदावंद आपकी जिंदगी की उम्र को बढ़ाए. हालेलुया. Fasting is not dieting. There is a 3-month diet plan. Doctor said you have a diabetic 3-month diet plan. 90 days fasting. है ना? ऐसे भी है. I not eat this thing or that thing because I am doing fasting. Actually, you don't know the purpose of your fasting.
आपको अपने रोजे के मकसद का ही नहीं पता। आपने रोजा रखा है, किस मकसद के लिए आपने रोजा रखा है? We have to know it कि आज हमने किस मकसद के लिए रोजा रखा है। हालेलुया। If you are not focused, the fast is useless. अगर आपका फोकस नहीं है दुआ के ऊपर, खुदा की बारगाह के ऊपर, खुदा के कलाम के ऊपर, तो उस रोजे का कोई मकसद नहीं है। फास्टिंग डिमांड्स रिप्लेसिंग। फास्टिंग को किससे रिप्लेस करना है? फास्टिंग डिमांड करता है, वो आपसे कहता है कि अगर आपने रोजा रखा है तो ये मेरी डिमांड है, पूरी करो। What is it, the demand of fasting? Praying, reading Bible, reading the word of God. Fasting demand replacing the reading the word of God and pray without meal or with meal. है ना? रोजे में कितनी दुआ करते हैं हम? Come on. 20-15 मिनट कितने देर तक दुआ करते हैं? मॉर्निंग एंड 1 घंटा। वेरी नाइस। हमें ज्यादा से ज्यादा दुआ करनी, ये तो हमारे डेली रूटीन है। जब आप एक एक के लिए दुआ करोगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि 1 घंटे से ऊपर दुआ हो गई है। एक फैमिली को ले 5 मिनट दुआ करें और चर्च की 10-15 फैमिली के लिए अगर आप दुआ करें, सो यू ऑटोमेटिकली रीच मोर देन 1 आवर। डू इट इन प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करें, आप दिल से दुआ करें, लोगों के लिए देखें, खुदा ने अपना जलाल जाहिर करे। आमेन। You have to show good. He is more important. आपको दिखाना है दुनिया को कि मेरे लिए मेरा खुदा बहुत जरूरी है, मगर अपने सारे काम भी करने हैं। You have to do your regular work. अपने रेगुलर काम के साथ आपने दुआ करनी है। You replace your time with prayer. अपनी दुआओं के साथ अपने वक्त को गुजारना शुरू करें। जितनी ज्यादा आप दुआ करेंगे खुदावंद उतना ही आपको बरकत देगा। Sometimes people think if you do more prayer, the devil is more active in your life. है ना? लोग यही सोचते हैं कि ज्यादा दुआ करने से शैतान ज्यादा हमारा पीछा करता है, ज्यादा मुश्किल परेशानियों में डालता है। But we are not understand the devil is not behind our life. There is a certain level when the devil is away from you, when you coming on that way, उस जगह से जब आप गुजरोगे और शैतान के वहां पे पहले होंगे तो वो जैसे ही आपको देखेगा उसको आग लगना शुरू हो जाएगी। वो वहां नहीं खड़ा रह सकता। That is your mindset. लोगों ने अपना माइंडसेट किया हुआ है कि ज्यादा दुआ करने से ज्यादा मुश्किल परेशानी आती है। But if you grow in Christ, see the life of Christ, तो फिर आप यीशु की जिंदगी को देख लें। वो तो खुदा में बढ़ता ही जा रहा था, वो कदो कयामत में बढ़ता था। हाँ? Which gospel says? Come on. Which gospel says Jesus Christ is growing day by day in wisdom and in status? Huh? In Luke. Very nice. वो कदो कयामत में हिकमत में बढ़ता जा रहा था। जब आप जितनी दुआ करेंगे, God anointed your wisdom, वो आपको हिकमत देगा। दुआ करने से आपको हिकमत मिलेगी। You can resolve the issues. You can resolve the problems. You know what is exact. You have to do it for that situation. दुआ करने से you have to not miss your husband is not coming because you are not praying. You are not praying, that's why he is not coming. That is your responsibility. Amen? Amen. Prayer is very important. अगर खानदानों को जोड़ के रखना है तो दुआ की जरूरत है। Without praying, the devil is going to scatter it. He is ready to scatter every family. He did it in the beginning. He scattered the Adam and Eve family. And he did the same. वो परगंदा करता है,
वो रिश्तों को खराब करता है, वो लड़ाई झगड़ों को पैदा करता है। When you feel, you know what happened? When the devil is burning some places, he will not allow the person to come on that place. There is a more churches is also, you can go there, you can feel comfort because there is no fire in that places. क्योंकि उन जगहों पे शैतान को आग नहीं लगती, everybody is there. उनकी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं है. There is a lot of churches, they are doing only praising, worshipping, dancing, but you cannot change one single soul. It's only Jesus. सिर्फ यीशु है जो जिंदगियों को बदलता है, परस्ती से कोई नहीं बदलता. One single person tell me who changed with the praise and worship. But when we praising God, when we praying to God, He changed the nations. Amen. Amen. By the power of His resurrection, things will shifting. Amen. 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 The dead thing is going to be risen. Amen. That dead relationship is going to raise. Amen. Stay in one place. Never serve two masters. I say, read the Bible again and again. You lost everything but you hold it. एक दिन सब चीजें आपके हाथ से निकल जाएंगी. You love one, but don't serve two masters. God doesn't like it. God doesn't like it. He says, serve one, stay only one place. God is changing everything in your life. Amen. 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 There is a 70 people, more than 70 people Jesus ordained as a disciple. And how much remaining? Only? There is a many people in this ministry. But God chose you. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. There is a purpose in your life. आपकी जिंदगियों का मकसद है, और वो मकसद एक दिन आपको समझ आएगा कि खुदावन ने हमें ये सारी चीजें इस कलीसिया में सिखाई और खुदा के नाम को आप जलाल देना शुरू करें. Amen. I focus on your life. आपकी जिंदगियों की मुझे परवाह है. I don't care about your worries, your tension, your problem, your finances. When you strong with Christ, जब आप खुदावन यीशु में बढ़ते जाएंगे, वो यीशु आपकी जिंदगी में काम करना शुरू करेगा. Amen. Hallelujah. Are you happy? Yes. Are you happy in this little flock? Yes. Are you happy? Yes. Give a big clap to the Lord Jesus. The Bible says, "Fear not, O little flock. I am with you." Amen. ऐ छोटे गधे, ना घबराना. Amen. Amen. I'm not afraid. People coming, not coming, stay at home, going to other churches. I never care about anyone. I know I want to give one time when I stand before my Master, Lord Jesus Christ of Nazareth. I'm stand blameless. Hallelujah. And you also stand blameless before God. Amen. You also stand blameless before God. Amen. 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 खुदावंद आपको बरकत देगा. Don't worry about your family. Tell them you have to come. I tell you, that's why people lost their blessing. They don't understand. When you sow the seed in the ground, and that tree is going to give you the fruit. When you get the fruit, don't go another finding tree. That tree is not giving you the fruit. They will take your fruit and destroy your blessing. Initially, you will not understand. When the times come, you will be realized, मेरे पास जो कुछ था सब चला गया. जो कुछ मैंने बनाया था, वो सब चला गया. I tell you, God is jealous God. He don't like it, this type of thing.
He's jealous God. If you don't want to be put in this ministry, He will be initially take you in another ministry. You come, get your miracle, go and leave this ministry and go another ministry. No. God is a jealous God. I'm always fear for the wrath of God. मैं हमेशा खुदा के गजब से डरता हूँ. You don't think it, but God is a just God. वो सच्चा खुदा है. वो अपने वादों में सच्चा है. और वो अपना जलाल जाहिर करने की कुदरत रखता है. Amen? Amen. What is your chat time or a time to gossip change with prayer? जो आपके बातचीत या किसी से फोन पे बात करने का टाइम है, टेक्स्ट मैसेज करने का टाइम है, उसे बदले अपनी दुआ के साथ. फास्टिंग डिमांड्स डेडिकेटिंग टाइम फॉर द मेडिटेशन. आपका रोजा जो है वो डिमांड करता है आपसे कि आपने खुदा के कलाम पर ध्यान लगाना है. That's why it's very important. जब आप खुदा के कलाम पर ध्यान नहीं लगाएंगे तो खुदावन किस तरह आपको बरकत देगा. There is not only reading a Bible, there is a little action also. हमें अपने actions पे भी ध्यान करना है. So which action give us the blessing? Many times we have a blessing, but our action is not going to show that blessing. And we hold it that blessing. And God is waiting to bless you more. But you are not releasing that blessing. You hold it still like that. You open your hand. You have to open your hand to receive more, to receive more, to receive more. अपने हाथों को खोलेंगे तो ही आप ज़्यादा से ज़्यादा खुदा की बरकत हासिल करते हैं. Always gives a time for prayer. Get up early in the morning. सुबह सुबह उठे. आज मैंने रोजा रखा है. आज मैं 5 बजे उठूंगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करूंगा. Hallelujah. Meditate with God. आज मैं खुदा के कदमों में बैठूंगा और ये सारे लोगों की मुश्किल परेशानियां खुदा को दूंगा और मैं खुदा से पूछूंगा कि इसका क्या जवाब है, इसका क्या हल है. I did it like that, and many times the Holy Spirit revealed on that spot. बहुत सारी चीजें मुझे याद करते हैं. Doesn't mean you talking, it means you listening also. ये नहीं कि दुआ करके भाग गए आप. खुदा को भी बोल सुनने का मौका देना है आप. Then you will be silently say, Holy Spirit, talk to me. Jesus, talk to me. He will talk to you. वो आपसे जरूर बात करेगा. One time you practicing, you will not heard it. Second day you practice, दूसरे दिन आपने की practice, आपने फिर नहीं सुनी. But continuously, if you do practicing, the time will come you start hearing the voice of the Lord. Amen. Amen. और खुदा की आवाज को सुनना हमारे लिए बहुत जरूरी है. Quietness is a powerful form of prayer. खामोशी, संजीदगी सबसे अच्छी दुआ करने का टाइम. जब 5 बजे उठते हैं ना, सारे सो रहे होते हैं. नींद खराब करके आदमी आधा उठा होता है, आधा सो रहा होता है ना. जाके मुंह धो के फ्रेश होके बैठता है और संजीदगी से अपने खुदा से बात करें. That time is a supernatural time, है ना. साथ में खराटों की आवाज आ रही है जो साथ में सो रहे हैं. हाँ, the snoring is also listening. लेकिन आपका जो मेडिटेशन का टाइम है ना वो बड़ा खूबसूरत है. जब आप रात को करते हैं ना, they are fully tired. There is no meditation. That is your routine prayer. मेडिटेशन नहीं कर पाते आप. मेडिटेशन उस टाइम करते हैं जब आप रिलैक्स होते हैं. इसीलिए वो योगे में क्या करवाते हैं? रिलैक्सेशन कराते हैं ना. ध्यान लगाओ, वो कुछ बोलते हैं कि अपना ध्यान ऐसा करो, वैसा करो, मेडिटेशन करो. सो रिलैक्स करते हैं हम. तो सुबह सुबह हम रिलैक्स होते हैं. हाँ, कितने बजे रिलैक्स होते हैं? 10 बजे, 9 बजे. हाँ आंसर, कितने बजे रिलैक्स होकर उठता है? हाँ, मैं आजकल 11 बजे रिलैक्स होकर. रोजे इसीलिए fasting requires spending much time in the word.
फास्टिंग की ये रिक्वायरमेंट है, जरूरत है कि अगर आपने वाकई फास्टिंग को रिवॉर्ड लेना है, सो यू हैव टू स्पेंड मोर टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फास्टिंग हमारे लिए, मैं आप ये कहता हूँ स्किपिंग मील टाइम वो नहीं है, आपका ज्यादा से ज्यादा वक्त दुआ में गुजरना चाहिए। ये नहीं आप ऑफिस में भी हो, आप ऑफिस में भी अपनी दुआ कर सकते हो। थैंक यू जीसस, तूने आज मुझे को ताकत दी, तूने हिम्मत दी, सेहत दी, इस काम के लिए मैं जा रहा हूँ, खुदा तू मेरी मदद करना। गॉड help me Lord Jesus, I'm going to driving right now. God help me Lord Jesus, let me reach safely in my office, safely in my college, and now I'm going to meet this person. Jesus help me and let this change the mind of this person, open the heart of this person, so I will receive my blessing. और आप चलते फिरते भी अपनी दुआ को कंटिन्यू कर सकते हैं। I did it in my life. I did it. I'm driving 6 hours, 7 hours, 8 hours. I'm praying, listening word of God, praying, reading word of God, praying. It's not an easy, but you have to do practice. गाड़ियों में तो सबके रेडियो लगा हुआ है, यूएसबी लगाएं, सुने, खुदा के कलाम को सुने, मैसेजेस को सुने। मैसेजेस आपको रिवाइव करते हैं, आपकी स्पिरिट को इनकरेज करते हैं। All the messages YouTube is filled. हर मैसेज जो है YouTube के ऊपर अपलोड किया हुआ है। YouTube का अपलोड मैसेज आराम से अपनी गाड़ी में आप सुन सकते हैं। You can get the answer of your situation. आपकी सारी सिचुएशन के आंसर्स हैं खुदा के कलाम में। आप हर टाइम में जब खुदा के कलाम को सुनेंगे तो हर कलाम आपको डिफरेंट एंगल से आपकी जिंदगी में ब्लेस करेगा। Amen? But when you read word, you read God. जब आप खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो आप किसको पढ़ते हैं? खुदा को पढ़ते हैं। Amen? Fasting is good time to spend a time with word. ये सबसे खूबसूरत वक्त है कि हम अपने खुदा के साथ अपने वक्त को गुजारें। Cook a meal at least 3 to 4 hours before. कोई भी अगर हम खाना बनाते हैं तो उसकी तैयारी कैसे करते हैं? 3-4 घंटे पहले, है ना? मेरी वाइफ सुबह उठते 6 बजे, आज दोपहर क्या बना, नाश्ता भी नहीं किया मगर दोपहर की फिक्र लग जाती है। ऐसे ही है ना, अभी दोपहर का खाना हुआ नहीं तो रात की फिक्र लग जाती है। रात को क्या खाएंगे, ये तो खत्म हो जाएगा। प्रिपेयरिंग, माइंड के अंदर एक प्रिपेयरिंग चलती है 3 से 4 घंटे पहले कि हमने क्या खाना बनाना है। ऐसे ही है ना, फिक्र लग जाती है आज क्या बनाना है। आपके लिए तो इजी है, वो तो हर चीज बाहर से खाता है। आज शाम को फिक्र लग जाती है कल क्या बनना। हाँ, देखिए। So buy a stuff from outside, cut it, wash it, boil it, made it, set in the table, eat it in the table. It will around 3 to 4 hours. है ना? बाहर से सब्जी लेके आनी है, ये रह गया, वो रह गया, कभी प्याज खत्म हो गए, कभी आलू खत्म हो गए, कभी जिंजर खत्म हो गया, कभी ऑयल खत्म हो गया, कभी कुछ और चीज खत्म हो गई। So you have to go and buy. ऐसे ही ना सर? रोटी बनाना है ना? सब्जी बनाना है? कितने घंटे लगा? 2 घंटे। ये फास्ट है, कोई इससे कम में बना लेते हैं। When you fasting, how many chapter you read? That is important. खाने के लिए हम लोग 3-4 घंटे पहले से तैयारी शुरू करते हैं। फास्टिंग के लिए कितने घंटे पहले तैयारी? हाँ? आज मैंने रोजे में ये काम करना है, आज मैंने रोजे में ये चीजें हासिल करनी है। ऐसे ही है। Fasting is giving your time back to read the word of God. अपने वक्त को खुदा को दे दे कि मैं अपनी जिंदगी में जो मेरे से खुदा को वक्त नहीं दिया जा रहा था, खुदा ने मुझे ये मौका बख्शा है कि मैं अपना वक्त उसे दे सकूं। No one say to God, I have no time. खुदा को आप कह रहे हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है। I have a messages. The people are doing all this here and there, barbecue night and program, और ये फेसबुक पे डीपी लगाते हैं, फोटोज लगाते हैं। चर्च के लिए टाइम नहीं, उठा नहीं गया हमसे। When the time comes, the God said, I have no time for you. Then the people are crying. फिर वो कहते हैं पास्टर जी दुआ करें, रोजा रखें, घुटनों के बल जाए। They have instruction for me
कि जब आप घुटनों के बल जाके रोजा रख के मेरी दुआ करेंगे तो खुदा जरूर सुनेगा। जब पास्टर कहता है कि खुदा के घर में आप तब नहीं सुनते। That is the problem। आज हमें अपने आप को रोजा जो है वो हमें करेक्ट करता है। That's why Jesus said you cannot cast out these type of demons. For that you have to do fasting. That is a different। हमने ऐसे कह लिया कि इस बदरू को निकालने के लिए हमें रोजा रखना फिर ये निकलेगी। No, that is not the meaning of God, Jesus। यीशु का ये मतलब नहीं है जो हम आज मतलब लेके बैठे हुए हैं। He said when you do fasting, you are spiritually growing. Okay? Jesus is here, devil is here, and we are here, and we want to cast out the devil. और हम शैतान को गिराने के लिए यहां से मार रहे हैं, हम उस तक पहुंच ही नहीं रहे। How you can reach? The fast access is doing fasting, pray. One day you are here, second day you go to the more higher, and third day when you pray for this dirty defeated spirit is going to leave you. Amen. Amen? इसका ये मतलब है फास्टिंग से ये नहीं कि फास्टिंग खुदा ने कहा कि रोजा रखो तो ये बदरू निकाल दोगे, ऐसा नहीं है। It's your benefit. That's why they don't have a faith. उनका ईमान नहीं था रसूलों का। The apostles have no faith. What Jesus said? Come on. यीशु ने क्या कहा? The faith of a mustard seed. आए बेत टिका दो, आए बेत टिका दो। कहां गया तुम्हारा फेथ? फास्टिंग आपके वक्त को बहाल करता है। Amen? आप हिसाब लगाएं, अगर आप 2 टाइम का खाना छोड़ दें तो कितने घंटे का टाइम मिल जाता है आपको? 2 घंटे आपने खाना नहीं बनाया, कितना घंटे आपको वक्त मिलेगा? छोटा सा बस सोचे अपने दिमाग में, कितने घंटे का टाइम मिलेगा आपको? 1 to 1.5 hours। नहीं, खाने में नहीं, 2 टाइम का खाना छोड़ दो, बहुत है। 4-5 घंटे आपको फ्री मिल जाता है ना। तेरे 2 घंटे ने ना छोटी दे तेरे को ज्यादा टाइम हो गया दुआ करने में। हाँ गजफर सही कह रहे हो या नहीं? दुआ शुरू की है। What happened? Net connection, bring it here near to that. So there is a effects of the fasting also. Effects of the fasting. Fasting changes us. Fasting doesn't change God. खुदा को नहीं आप बदल सकते। याद रखें कि रोजा आपको बदलता है, खुदा को नहीं बदल सकते आप। God never change. He is same yesterday, today and forever. वो आज कल और अब तक यकसा खुदा है। आपके 1-2-10 दिन रोजे रखने से क्या चेंज कर लेंगे आप? हाँ? पूरा साल हमने कभी दुआ नहीं की और 10 दिन रोजा रखा तो अभी तक खुदा ने जवाब नहीं दिया। कब खुदा सुनेगा हमारी दुआ का? नॉर्मल प्रैक्टिस करें। फास्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। फास्टिंग इज फॉर यू, नॉट फॉर गॉड। रोजा आपके लिए, खुदा के लिए नहीं है। फास्टिंग डज नॉट मूव गॉड। फास्टिंग से आप खुदा को मूव करना चाह रहे हैं कि ये अभी तक मिली नहीं चीज मुझे मिल जाए। Fasting does not move God. Fasting gives you more capacity for God to move. रोजा जो है आपको ज्यादा जो है क्या देता है? काबिलियत देता है कि आप जो है खुदा के लिए इस्तेमाल होना शुरू हो जाए। ऐसे ही है ना?
फास्टिंग के बहुत ज्यादा फायदे हैं आपकी जिंदगी में. It does not move God. You can manipulate God by fasting. हम क्या करते हैं फास्टिंग के साथ, खुदा के साथ मैनिपुलेट क्या कहते हैं इसे उर्दू में? Come on. हाँ, बहकाना. और come on. हिंदी में बता दें क्या कहते हैं मैनिपुलेट? सामने कुछ और पीछे कुछ हो, ऐसे ही नहीं. जॉन कह रहा नहीं, that is not correct. What is manipulate? To mind control. हाँ? To mind control. Mind? Control. अपने Come on. तक के लिए इस्तेमाल कर मैनिपुलेशन. अपने फायदे के लिए, अपने मुफाद के लिए किसी को इस्तेमाल करना. हाँ, उसे कहना यार तू इधर आ, तेरे साथ ऐसा हो जाएगा. एक्चुअली वो आपके लिए आ रहा है, वो उसको आपने कुछ और स्टोरी सुनाई है, आगे आप अपने उससे फायदा लेंगे, है ना? फास्टिंग प्रिपेयर योर पोजीशन यू टू रिसीव फ्रॉम गॉड. रोजा जो है आपके लिए एक जगह तैयार करता है जहां से आप खुदा से बरकत हासिल कर सकते हैं. रोजे कितने फायदे हैं? Fasting increase your and our spiritual capacity. अगर आप spiritually इतने हैं तो आपकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी. Amen? खुदा की खात्मा जो खुदावंद में सो चुकी है. Might be you heard the name of Catherine Kuhlman. She is the British lady. She was a British lady, 6 feet height. But when she came to the States, signs, wonders and miracle is going to be happen without praying. Because when you do fasting, your spiritually growth is more. जब आप रोजा रखते हैं तो आप रूहानियत में बढ़ते जाते हैं. आपको दुआ की जरूरत नहीं पड़ेगी. खुदा आपकी जिंदगी में ऑटोमेटिक काम करना शुरू कर देगा और आपके वसीला से लोग बरकत हासिल करना शुरू कर देंगे. आमीन. और खुदावंद बरकत देता है उसमें. और जब आप फास्टिंग करते हैं तो फॉर एग्जांपल एक पानी का जो है टैंक ले आए आप और इसमें छोटी सी एक पाइप लगा दें, तो कितनी देर में वो खाली होगा? 500 गैलन का बाहर टैंकर खड़ा है और आपने छोटी सी पाइप लगा दी है, कितनी देर में आप वो खाली करेंगे? हाँ, कम ऑन, कितना? फिर भी आप अंदाजा 2 घंटे, 3-4 घंटे, क्योंकि रिसीविंग की कैपेसिटी क्या है? कम है. उसके आगे अगर आप बड़ा पाइप लगा देंगे, हाँ, चेंज का पाइप लगा देंगे, तो फिर क्या होगा? आधे पौने घंटे में वो पूरा बड़ा ट्रक क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा. वो आपकी the tanker, if you have a 500 gallon tanker, you put a small nozzle in that, which is 1 inch. How much time it will take to empty the truck? But if you put it the 6-inch pipe over there, it will be empty very fast. The same, when you connect with the God without fasting, your pipe is very small. आपका नोजल, आपका पाइप का साइज क्या है? रिसीविंग का बहुत छोटा है. उससे कितने आप लेंगे? आप तो 1 घंटा खड़े नहीं रह सकते, 2 घंटे खड़े नहीं रह सकते. खुदा तो बरकतें देता जा रहा है, मगर आप नहीं खड़े हो सकते. Now you have to increase the pipe size. पाइप के साइज को बढ़ाना पड़ेगा आपको. अगर खुदा से बरकत लेनी है तो आपको अपना साइज भी बड़ा करना पड़ेगा. When you put it in the bigger size of pipe and connect it to the water tanker, it will be finished so easily. और वो जल्दी से खाली हो जाएगा. ऐसे ही है ना? फास्टिंग है और खुशबुएं आ रही है खाने की, है ना? बंद रूम में भी खुशबुएं भेज रहे हैं, ठीक है?
आ रही है नहीं आ रही? Yes, very small. करी वाली भी चल रही है यार। फास्टिंग इंक्रीज द पाइप साइज। रोजा जो है आपके साइज को क्या करता है? बढ़ाता है। आपका साइज बढ़ जाता है, आपका रिसीविंग का साइज क्या होता है? बढ़ जाता है। रोजे के अंदर आप खुदा से ज्यादा बरकत हासिल कर सकते हैं। Amen? You want little bit from God, come to you. अगर आप थोड़ा लेना चाहते हैं तो बगैर रोजे के जो डेली रूटीन की आपको दुआ है उससे आपको थोड़ा ही मिलेगा। But if you want a massive blessing to run the companies, मेरा मोबाइल नहीं देना इसे, ये तोड़ देगा। मैं मिलावट सर, नो मोबाइल। फास्टिंग इज यूजिंग ड्रेन होल फ्रॉम स्पिरिचुअली, कि यानी कि वो स्पिरिचुअली जो है वो आपको क्या कर देता है? ड्रेन कर देता है। आपके अंदर जितनी भी अनवांटेड अनवांटेड चीजें हैं, ना चाहते हुए ना समझते हुए भी जो चीजें आपने पकड़ के रखी हैं, रोजे से वो सारी चीजें क्या हो जाती हैं? खाली हो जाती है। Amen? And there is a one pastor, his name is Shambak. Would you heard it the name? Thank God. He's a good pastor. Someone asked him why evil spirit attack over the people. हाँ? जब आप बदरूहों को निकालते हैं तो क्यों खुदा के खादमों के घर में और उनके लोगों की जिंदगियों में काम करती हैं, सताती हैं, परेशान करती हैं, मुश्किल परेशानियां लेके आती हैं? He said because place is bigger. फास्टिंग से क्या होती है? जगह हमारी स्पिरिचुअली रूहानी जिंदगी खुल जाती है। प्लेस आपकी क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। साइज क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है आपका। When your size is open, then everyone has access to inside. अब कहां से आप रोकोगे? You have to close all the doors. एक बड़ा घर है और यहाँ पे हमें 2 कमरे का घर मिल जाए तो इजीली हम कर लें। अगर हमें 20-25 रूम का घर मिल जाए तो क्या हम उन सारे 20-25 कमरों को साफ कर सकते हैं? उनकी सफाई कर सकते हैं, डस्टिंग कर सकते हैं, हाँ झाड़ू पाँव लगा सकते हैं? नहीं कर सकते, because the size is very big. When you do fasting, you are spiritually growing. और उसके ग्रो करने से क्या होता है कि वो साइज बड़ा जब होता है तो एक्टिविटीज भी ज्यादा बढ़ जाती है। ओके, बिकॉज दे नो द कैपेसिटी ऑफ द स्पिरिचुअली एक्टिविटीज। क्योंकि जब आप रूहानियत में बढ़ जाते हैं तो फिर आपको रूहानी चीजों का इल्म होता है कि ये किस तरह काम करती है, ये किस तरह काम करती है, ये किस तरह काम करती है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। Amen? On the way. I don't want to say anything. They can't bother you because you talk to God. वो आपकी टेरिटरी में भी आ जाएंगे तो आपको बॉदर नहीं करेंगे, because you talking to God and they are under you. Evil spirit is under you. If you not talk to God, fasting is in danger. अगर आप खुदा के साथ बात नहीं करते, राब्ता नहीं है, तो रोजा फिर आपके लिए क्या है? मुश्किल है ना? If you go for other religion, they are also doing fasting. अभी बहुत ही जल्द जो है रमजान आने वाले हैं, है ना? 30 days fasting. Hindus also doing 60 days fasting. 16 दिन का रोजा रखते हैं continuously. All other religions they do fasting. But why they do fasting? To reach spiritually. ताकि वो spiritually क्या कर सके? Growth कर सके. It's dangerous to fast without knowledge. ये बहुत खतरनाक है। रोजा रखना बहुत खतरनाक है अगर आपको उसका इल्म नहीं है। रोजा रखे तो तबीयत खराब होगी, है ना? I'm sick because
because I do fasting. Because you don't know. आपको नॉलेज नहीं है, उसका इल्म नहीं है कि मैंने रोजा किस मकसद के लिए रखना है, उसका क्या काम है, उसके क्या फायदे हैं और उसका क्या नुकसान है. When you fast, some spirit in you increase his capacity in your life. खुदा के रूह की कैपेसिटी क्या होती है? बढ़ जाती है. That's why Jesus fast 40 days before begin to the ministry. अपनी मिनिस्ट्री का आगाज करने से पहले खुदावंद यीशु ने क्या किया? कितने दिन का रोजा रखा? Leave it Jeremiah, leave it everything. Let him play. कितने दिन का रोजा रखा? 40 days. And what happened after 40 days? Huh? He is tempted. Who tempted him? Why? Because he was increasing in spiritual life. Spiritually he is increasing. जब आप रूहानी तौर पे बढ़ते हो तो शैतान भी एक्टिव हो जाता है कि ये मुझे मारना दे. वो अपने बचाव के लिए आता है कि गुजरते गुजरते कहीं भी मेरा नुकसान ना कर दे. ऐसा ही है. After 40 days it's written he left the desert filled without the spirit, without measure. वो इतना रूहानी में बढ़ चुका थे. खुदावंद यीशु रूहानियत में उसकी कोई इंतहा नहीं किस तरह वो खुदावंद रूह में बढ़ चुके हैं. That's what fasting does to expand your capacity. आपकी कैपेसिटी को क्या करता है? बढ़ा देता है. आज हमारी कैपेसिटी सिर्फ एक पानी की बोतल है. हमने अपनी कैपेसिटी को कितना करना है? कितना करना है फास्टिंग में? कम ऑन. कितना पानी पी सकेंगे? 3 times. 3 times. It means 1 liter, 1.5 liter. बस इतना ही आप कैपेसिटी है. 10 लीटर रोजे के अंदर इतना आपने बढ़ाना है अपने आप को कि आप 10 लीटर भी पानी पी सकें. अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना है, रूहानी कैपेसिटी को बढ़ाना है, अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों को नहीं बढ़ाना. 40 दिन तक कुछ नहीं किया है ना. क्या होता है रमजान में? 30 डेज सब कुछ बंद होता है. जैसे ही 30 डेज के बाद वो खत्म होता है उसी रात तो सारे डिस्को खुल जाते हैं, सारे बम खुल जाते हैं. आ जाओ दोबारा गिर जाओ शैतान के हाथों में. नॉट ओनली फॉर द मुस्लिम, ऑल. ये नहीं कि खाली वो मुसलमानों के लिए बंद किया गया, वो सबके लिए एक्चुअली बंद किया. See, I am very happy for this country. They give the leverage. आपके पास मस्जिदें भी उतनी, आपके पास चर्चेस भी हैं, आपके पास मंदिर भी हैं. No one stop you. आपके पास डिस्को भी उतने ही है, पब्स भी उतने ही है, हाँ, शराब खाने भी उतने ही है. कोई आपको फोर्स नहीं करता. ये आपकी मर्जी है, आपने कहा जाए. कोई आपको फोर्स करता है? कोई गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई प्रेशर नहीं है. वो आपकी मर्जी है, आपने क्या चूज करना है. तो हम क्या चूज करते हैं? एंजॉय. 30 डेज 40 डेज कुछ नहीं किया, एंजॉय करते हैं आज. ऐसा ही अपना पूरा 30 डेज का पूरा जो भी कमाया होता है 40 डेज के अंदर उससे दोबारा जीरो पे ले आते. ऐसे ही अगर आप 40 डेज रोजे में अगर आपको इतनी कैपेसिटी आपकी बढ़ चुकी है, यू हैव टू इंक्रीज एवरी डे. उस साइज को बढ़ाना शुरू करें. देन सी हाउ गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू. आमेन. फास्टिंग आपकी कैपेसिटी को क्या करती है? बढ़ाती है, इंक्रीज करती है. आमेन. फास्टिंग ब्रेक हैबिट्स एंड स्पिरिचुअल बॉन्डेजेस. रूहानी बंधनों से, रूहानी जकड़ों से, शैतान के मंसूबों से आपको क्या करती है? आजाद करती है, ब्रेक कर देती है फास्टिंग. बहुत सी दफा जब आप फास्टिंग रखते हैं तो इविल स्पिरिट जो होती है, जो किसी ने सालों पहले जादू किया था, वो एक्टिव हो जाती है. कि आप स्पिरिचुअली रैम में बढ़ गए. वो स्पिरिट जो बहुत सालों से बैठी हुई है, वो मैजिक जो बहुत सालों से बैठा है, वो एक्टिव हो जाता है आपकी बॉडी के अंदर.
और आप सोचते हैं यार मैंने तो रोजा रखा था, खुदा के साथ कलाम भी पढ़ रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, why it's going to be happen? You thinking why it's going to be happen? Because I'm doing fasting, I'm reading a word of God, I'm praying so harder. But this dirty defeated spirit, how it come nearer to me? Because you don't know your spiritual capacity is expanded. वो बढ़ती जा रही है, वो बढ़ती जा रही है. It's all fasting. If you do liquid fasting, if you do full fasting, if you do half fasting, if you do some hours of fasting, it's you will be spiritually growing. ये नहीं कि भूखा रहने के बाद ही आप ग्रो करें. Every fasting you can do. Amen. First habit, fasting break the desire of food. आपकी फूड की डिजायर को क्या कर देती है? वो ब्रेक कर देती है. 3 desire of body is killers. 3 ऐसी जिस्म की ख्वाहिशें जो हमें मारती हैं. कौन कौन सी? Come on. कौन सी ऐसी 3 ख्वाहिशें जो जिस्म को मार देती हैं? Clothing and shelter. Water. Food and clothing and shelter. Yes. Desires. That is not desire. कौन सी 3 ऐसी डिजायर्स हैं जो आदमी को मार देती हैं? कौन सी 3 ऐसी ख्वाहिशात हैं जो आदमी के बदन को मार देती हैं? हंगर, फूड, थर्स्ट, ड्रिंक और Money. Come on. No. House. What do you say? Sexual immorality. Yes, right. Sexuality. ये 3 चीजें, ये 3 ख्वाहिशें इंसान को मार देती हैं. प्यास, भूख और जिस्म की ख्वाहिश. Your son is reading Bible. Glory, you have to rejoice. Glory be to God. He is reading Bible. That's why he is a boldness, confidence. The Bible gives you boldness and confidence. You are not seeing we are in 10 or 5. You are standing between the hundreds and the millions, and the same boldness gives you the Holy Spirit. You can boldly speak. Whatever the word comes, boldly say. Amen. These are challenges man faces. If you take alcohol, if you stop immediately, it will kill you. मार देगी वो आपको. ऐसे ही है ना? जो पीने वाले हैं वो एकदम से नहीं छोड़ते. They will be taking the rehab to give some type of a replacement of that, and after some time he is going to be set free. ऐसे ही है ना? जो शराब ज्यादा नोशी करता है फिर उसे एक अदारे के अंदर ले जाते हैं, रिहैब के अंदर ले जाते हैं ताकि उसका ट्रीटमेंट हो और वो उसे छोड़ दे. अगर वो अपने घर में छोड़ देगा तो वो उसे मार देगी. हाँ, सही कह रहे हो सुलेमान? Second food, Bible says the God is there. क्या? belly. पेट उनका खुदा है. ऐसे ही है ना? पेट के लिए लोग क्या क्या करते हैं? मार देते हैं. It's written in the Bible. The Bible says the God is their belly. उनका खुदा क्या है? उनका पेट. जो आता है खा लो, जो आया जिसका आया पकड़ लो, जिसका आया उसका भी ले लो, इसका भी ले लो, उसका भी ले लो, उसका भी ले लो. क्योंकि पेट क्या है? खुदा है. उनका पेट उनका क्या है? खुदा है. Just take a breakfast and think for the lunch. If you take lunch, then think about the dinner. जैसे ही खाना सुबह का खाया, दूसरा हमें क्या लग जाता है? दोपहर का. दोपहर का खाया, अब रात का. रात का खत्म हुआ, सोने से पहले सुबह क्या बनाना? स्टमक, भूख. ऐसे ही है ना? Now you see life is full occupied with belly. हर टाइम सिर्फ खाने पकाने का सोचते रहे, है ना? इसको कहता है यार बस कर दे, जो मर्जी बना, मेरे से ना पूछा कर. हाँ, ऐसे कहते हैं आप.
देखो मुझे पता नहीं क्यों खुशबू आ रही है, आपको आ रही है खाने की? Yeah. कि चर्च के अंदर खाने की खुशबू आ रही है, ऐसे कोई ताज़ा ताज़ा खाना बना। We became slaves to our intensive. अभी हम अपने इरादे के अंदर, अपनी सोचों के अंदर और उन सब के अंदर हम क्या हो जाते हैं? गुलाम बन जाते हैं। आज भूख बहुत लग रही है, आज ये बनाना है, वो बनाना है, और हम उनके गुलाम बने हुए हैं। आज क्या बनाना है, आज क्या बनाना है, आज क्या बनाना है, आज क्या करना है, आज क्या करना है। ये स्लेव, गुलामों की तरह, है ना? सिर्फ एक ही चीज सोचनी है। गुलाम क्या करते हैं? एक ही काम करना है ना, यही करना है, यही करना है, यही करना है, यही करना है। फास्टिंग ब्रेक इट दैट हैबिट। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, लेकिन उसको सर के ऊपर नहीं बिठाना कि हर टाइम बस एक ही सोचना है, जो मिले वो ही खा लो। सोच सोच के क्या होता है? इंसान का दिमाग जो है परेशान हो जाता है। ऐसे ही है, फास्टिंग गोइंग टू ब्रेक दैट हैबिट। वो आपकी हैबिट को ब्रेक कर देता है। ये आदत बन चुकी है, वो ऐसा कोई मसला नहीं है। अगर आप 50 इयर्स 40 इयर्स बैक चले जाए अपने घरों में, क्या आपको पता चलता था कि क्या बना दोपहर में? कुछ भी पता नहीं चलता था, सब कुछ बना हुआ मिलता था। रात का पता चलता था कि आज रात को क्या मिलेगा? एवरीथिंग इज कुक्ड। आज जो है हमने इसे क्या बना लिया? हैबिट बना लिया। एक्चुअली हैबिट हो गई है हमारी। वी हैव टू ब्रेक इट। आज हमें उसे क्या करने की जरूरत है? तोड़ने की जरूरत है। ब्रेकिंग अ फास्ट इज अ चैलेंज। इट लुक्स लाइक अ sin। अगर आप अपने रोजे को जो है तोड़ देते हैं अपनी कमिटमेंट से पहले, तो वो एक गुनाह की तरह है आपके, है ना? Somebody is see food and he say I want to break it, tomorrow I will do more fasting, है ना? ऐसे भी लोग करते हैं और वो अपने रोजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही है ना? But you have to break your habit। हमें अपनी आदतों को बदलना है, रूहानियत में बढ़ना है, हमें बरकत हासिल करनी है, हमें स्ट्रॉन्ग होना है, स्पिरिचुअली कैपेसिटी को बढ़ाना है, ताकि हम खुदा के नाम को चला सकें। आमीन। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आइए अपने आप को तैयार करें।